तो एक बार हम लोग यहाँ तक कर दे, हम लोग के यहाँ सेव है ना, आ जाएगा। चलिए एक मिनट को जस्टिन सर तो नहीं वेट कर रहे हैं बाहर। ये शॉर्ट कैसे हो गया? लाइव नेक्स्ट टाइम करो। सुनिए हम ये कहना चाह रहे हैं, एक बार अभी यहाँ कनेक्ट करके देख लेते हैं। करो जल्दी से, चलता रहेगा। जब चला जाए तो तुम अपने से हाँ फोन कर दो। ठीक है। जस्टिन मसीह सर इनको पहले वो बना देना, उनको पोस्ट बना देना। Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear children. I am very happy to see that a very good number of students have joined this program. First of all, let me introduce about this today's program. It is a matter of pride for SS Khanna that our college is supported under a strengthening component of Star College of Scheme of DBT since year 2019-20. And there are many objectives of DBT, and one very important objective is to spread the awareness of science among masses. And so we thought that we can achieve very easily this objective if by associating the students of Tagore Public School, which is very nearest to our college and which is also our sister institution. So with this aim, we have planned today's online science awareness program in collaboration with Department of Chemistry of Ewing College. Today in this program, we are having two eminent speakers. Our first speaker is Dr. Justin Massey from Department of Chemistry of Ewing Christian College. Sir, I heartily welcome you in this program. And thank you so much for your presence. Our second speaker is Dr. Sumita Sehgal from Department of Chemistry of Ewing Christian, देखो आपके कॉलेज के हैं ये. Hello. Any problem to anyone? Please, I request all of you to mute yourself. Our second speaker is Dr. Sumita Sehgal from Department of Chemistry of SS Khanna Girls Degree College. Warm welcome to you, madam, in this program. I see that some faculty members of Tagore Public School have also joined this program. So a very warm welcome to all of you in this program, and a warm welcome to dear students for whom this program is organized. And I'm very sure that you will enjoy these lectures and you will also learn a lot after these lectures. So as I have told you that our first speaker is Dr. Justin Massey, from Associate Professor from Department of Chemistry of Ewing Christian College. I would like to give the brief introduction of Dr. Justin Massey. Dr. Justin Massey is currently serving as Associate Professor of Chemistry in Ewing Christian College, Allahabad since year 2003. He is recipient of the prestigious Indian Academy of Sciences Research Fellowship for Teachers Award. And Dr. Massey has published more than 20 research papers in peer-reviewed and UGC CARE national and international journals. He has published book chapters, he has edited books, and has also developed e-content which is highly beneficial for students at present time. He also has his own YouTube channel named Justin Massey Chemistry Classes, which has over 1,000 subscribers.
Dr. Justin Massey has 2 PhD scholars who are pursuing research under him. Dr. Massey has been invited as resource person in a number of national and international conferences, seminars, and workshops. He has organized conferences and workshops and on relevant topics related to chemical sciences. Dr. Massey has many additional responsibilities at Ewing Christian College. At present, he is serving as Deputy Controller of Examination of ECC, Allahabad. He is Controller of Center for Food Processing and is also the Chief Public Information Officer of Ewing Christian College. Sir, I heartily welcome you in this program, and now I request you to deliver your talk. Sir, please. Sir, kindly unmute yourself. You're not audible. Yeah, okay. Am I audible, ma'am? Now? Yes, sir, yes. Okay. So, first of all, I really want to congratulate the Department of Chemistry at the SS Khanna Girls Degree College for organizing this event, this one-day event for the awareness of science among students. And it is also our privilege. Am I audible, ma'am? Okay. Thank you so much. And it is also our privilege at Ewing Christian College Department of Chemistry to join hands with SS Khanna Chemistry Department, which is an extended family of the chemistry teachers fraternity of the Allahabad University. And it is really heartening to see the passion and the zeal that SS Khanna Department of Chemistry has for the propagation and awareness of science among students. And in that line, we have joined it together with all of you. And it is my privilege and honor to represent the chemistry department of Ewing Christian College and participate in today's program by way of presenting a talk. Thank you very much. Madam Archana Jyoti, who is the SS Khanna Girls Degree program, and I also want to congratulate the Honorable Principal of SS Khanna Girls Degree College for your leadership and for your consistent support in organizing such programs. I have been given about 30 minutes to share on environmental awareness. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है. मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में आपके साथ कर सकूं ताकि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए और पब्लिक वो चाहे किसी भी भाषा में दक्ष हों, दोनों ही भाषाओं में उनको कुछ ना कुछ नया आज मैं उम्मीद करता हूं कि सीखने को मिलेगा. सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस से संबंधित कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड may I be allowed to share my screen so that we can all move forward. So this is the Science Awareness Program, and I particularly want to draw your attention towards this very important topic, which is particulate matter pollution. और इस संदर्भ में इस खास विषय पर कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे. बट बिफोर वी मूव इनटू दिस वेरी सुपर स्पेसिफिक एरिया ऑफ पोल्यूशन, students, you know all these different kinds of pollutions, water pollution. Okay. So now we are all mute and all of us can listen carefully. So we have one which is called water pollution, then we have soil pollution, then we have noise pollution, and of course we have pollution of radioactive materials, and then we have air pollution and so on. So just a brief note on what is water pollution. So it is the contamination of just a minute. Yeah, so it is the contamination of water sources by substances which make the water unusable for drinking. That's the basic idea. So anything
or any material, any substance which makes the water unusable for drinking. This is the primary purpose. And also unusable for cooking, for cleaning, for sports and games like swimming and other activities. So any substance that renders the water unfit for these purposes of drinking, cooking, cleaning, sports, swimming, other activities, those contaminants are referred as water pollutants, and the mechanism of the process is referred as water pollution. So and every other form of pollutant eventually makes their way to water. सब कुछ, हर एक प्रकार का प्रदूषक जो है वो फाइनली जाकर के किसी न किसी वाटर बॉडी में जाकर के शामिल हो जाता है, मिल जाता है. इसीलिए वाटर पोल्यूशन को हैंडल करना, उसको समझना, उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Then we have the other kind of pollution, which is called soil pollution or land pollution, which is defined as the presence of toxic chemicals in soil in high concentrations such that it poses a risk to human health or to the ecosystem. मानव के स्वास्थ्य को, पर्यावरण को किसी न किसी रूप से, नकारात्मक रूप से यदि कोई पोल्यूटेंट प्रभावित कर रहा है, सॉइल पोल्यूटेंट, उस मैकेनिज्म को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं. और हम लोग जानते हैं तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, गंदा पानी है जो मट्टी को प्रदूषित करता है. देयर आर लॉट ऑफ केमिकल एंड नॉन केमिकल पोल्यूटेंट्स which have the ability to pollute soil or pollute land, and so that is referred as soil pollution. और हम लोग सब इसके भुक्तभोगी हैं. आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गंदी मट्टी में यदि सब्जी और फल उगाया जाएगा तो जो कंटामिनेंट्स उस मट्टी के अंदर में है वही कंटामिनेंट तो हम उसके द्वारा प्रभावित हो जाएंगे. एंड therefore soil pollution also becomes a very important kind of pollution that needs to be really monitored and catered in a way that it does not affect human health. Then we have a new kind of pollution. इसके ऊपर अब बहुत emphasis दिया जा रहा है, and this is called noise pollution. Noise pollution. So it's generally defined as regular exposure to elevated sound levels that may lead to adverse effects on humans or other living organisms. And according to the World Health Organization, sound levels less than 70 decibels are not damaging. So 70 decibel से कम यदि साउंड है तो वो ह्यूमन सिस्टम को, कान के पर्दे को, पर्सनैलिटी को प्रभावित नहीं करेगा. लेकिन यदि 70 डेसिबल से ज्यादा sound levels हुए for an extended period of time, then it can cause certain adverse effects on human beings and living organisms, and that is considered as noise pollution. और इसीलिए आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी एडवाइजरीज जारी कर रखी हैं. जब पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीएस सिस्टम यूज होता है, माइक्स यूज होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर बॉक्सेस यूज होते हैं, देयर आर एडवाइजरीज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड. किस तरह का साउंड होगा, कितना साउंड होगा, और उन एडवाइजरीज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है. देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ pollution which is called radioactive pollution. Okay, and it is defined as the physical pollution of living organisms and environment as a result of release of radioactive substances into the environment. So physically living organisms को और environment को, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं. So यदि radioactive substances किसी तरह से release हो जाए environment में, it can cause a lot of problems. And what are the ways in which these radioactive substances are released in the environment? They can be released during nuclear explosions, testing of nuclear weapons, nuclear weapon production, okay, which is a big, huge business industry. Then we have mining of radioactive ores. This is another way in which radioactive substances are leaked in the environment. Handling and disposal of radioactive waste, and accidents at
द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और हम जानते हैं कि कुछ समय पहले जापान के अंदर में एक बहुत भयंकर दुर्घटना घटी जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव एमिशंस जो हैं वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से लीक हो गई, एंड इट कॉज्ड हैवक in the entire oriental world. So radioactive pollution also becomes a very, very important kind. Then this is a very, very common kind of pollution which is air pollution. और हम लोग सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हैं, किसी न किसी तरह से इससे अफेक्टेड हैं, और हम सब ने कभी न कभी एयर पोल्यूशन के दुष्प्रभाव को, इसके नेगेटिव इफेक्ट को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। Now, air pollution क्या है? It is a mixture of solid particles and gases in the air. Such in such a manner, ambient होता है हमारे आसपास की हवा, जिसमें से हम सांस लेते हैं, जिसमें हम सांस छोड़ते हैं, हमारे आसपास को आबो हवा कहा एम्बिएंट एयर है। सो यदि सॉलिड पार्टिकल से एम्बिएंट एयर में मिक्स हो जाए या उसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाए दैट इट रेंडर्स इट अनफिट फॉर ब्रीदिंग, सॉलिड particles and gaseous particles are called air pollutants, and the mechanism or the phenomena or the process is called air pollution. Air pollution. What are the most common sources? Automobile emissions, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, आपने देखा है, उसके प्रति है। You've seen, especially इंडिया में हम लोगों का कॉलेज है मुट्ठीगंज इंडिया में, अब देखिए बहुत सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सो वी हैव ऑटोमोबाइल एमिशंस, वी हैव केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज जो कि लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड एमिशंस, गैसियस एमिशंस होते रहते हैं। देन वी हैव डस्ट, सो मच ऑफ डस्ट ऑल अराउंड, वी हैव पोलेंस एंड स्पोर्स, एंड देयर आर मेनी अदर particles which remain suspended in the air, which make the air unfit for breathing. What is the meaning of the word suspension? Suspension means it is just hanging in the air. It is just, आपने ब्राउनियन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, आप जानते हैं ब्राउनियन मूवमेंट में पार्टिकल्स जस्ट कीप हिटिंग एंड मूविंग, और वो उस एम्बिएंट एयर के अंदर बने रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। सो ऑटोमोबाइल एमिशंस, chemicals, factories, dust, pollen, spores, and so many other particles, they make the air unfit for breathing. In such case, those are referred as air pollutants, and the phenomena is referred as air pollution. Okay. Now, there are many other types of pollution जिससे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी प्रभावित है, और ये नए टर्म्स हैं, इनके ऊपर अब काम चल रहा है। Social scientists and physical scientists and chemical scientists and philosophers are now thinking about these different kinds of pollutions जो नए प्रकार के हैं लेकिन लोग इनसे प्रभावित हैं। For example, thermal pollution, that's related to temperature. We have light pollution, very, very important. Plastic pollution, आप जानते हैं plastics very, very dangerous for the environment, और आपने पढ़ा हुआ है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पर्टिकुलरली अगर सिंथेटिक प्लास्टिक सब्सटेंसेस हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंड दे कैन कॉज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एनवायरनमेंट। हैजर्डस वेस्ट पोल्यूशन एक नया प्रकार है, ये तमाम तरह के पॉइजनस सब्सटेंसेस एम्बिएंट एयर में, मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर पड़े रहते हैं, और उसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन होता है। सो दोज आर हैजर्डस वेस्ट, डेंजरस, लाइफ कॉजिंग, लाइफ टेकिंग हो सकते हैं। देन वी हैव हॉस्पिटल वेस्ट. हॉस्पिटल वेस्ट इज अनदर एरिया ऑफ एम्फेसिस, अनदर एरिया ऑफ अटेंशन। लोगों का, वैज्ञानिकों का ध्यान उस ओर जा रहा है। हॉस्पिटल से निकलने वाला पोल्यूशन, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इलाहाबाद शहर के अंदर कितने नए स्कूल्स बने होंगे वर्सेस कितने नए हॉस्पिटल्स बने होंगे। आप खुद देख सकते हैं, और आप खुद इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्कूलों से, कॉलेजेस से कहीं अधिक मात्रा में
हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल्स, नए क्लिनिक्स बन गए हैं, और उनमें से जो निकलने वाला वेस्ट है, विच इज वेरी डेंजरस, इट्स फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफेक्शंस। प्लास्टिक वेस्ट होता है, इसमें कांच वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, सो मच ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो मच ऑफ बैक्टीरियल infested waste that comes out of hospitals. उस और लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ है कि इस वेस्ट का हम क्या करें। आप इमेजिन करिए कि हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, कहां उसको डाला जाए? क्या उसको मट्टी में गाड़ दिया जाए, उसको पानी में बहा दिया जाए, या उसको यूं ही खुले में छोड़ दिया जाए? व्हाट टू डू विद द वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ हॉस्पिटल? Another very very important area of our concern. So ये अलग प्रकार के पोल्यूशंस हैं, बट आज की दोपहर कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं मैटर पोल्यूशन। अब आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड is one of the most important air pollutants coming out of gases. बहुत सारा बीमारियां होती हैं, नोजिया होता है, एंड यू नो इट, यू प्रोबेबली नो इट बिकॉज यू स्टडीड इट, कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है। व्हाई इज इट कॉल्ड अ साइलेंट किलर? बिकॉज it has the ability to kill somebody and without even that person knowing it. It is a colorless gas, it is an odorless gas, you will not know if it is in concentration in a closed environment. और अगर आप टाइम के लिए वहां पर रह जाएं, you can get polluted with carbon monoxide, or carboxy hemoglobin बन जाता है, and you know all kinds of problems. Then we have carbon dioxide and other greenhouse gases, primary cause for global warming. Then we have oxides of nitrogen and oxides of the primary cause for acid rain. Then we have the ground level ozone. High ozone concentration in the environment can cause a lot of problems within the human system. और आप जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अधिक concentration की वजह से ozone depletion होता है, which is another concern, ozone depletion that happens in the outer space. And then of course we have particulate pollution, जिस पर मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान खींचना चाहता हूं. So what is particle pollutants या particulate matter या particulate pollutants किसे बोलते हैं? Now it is also called particulate matter. PM is the short form for particulate matter, and it is the term we used for a mixture of solid particles and liquid droplets which are found in the air. हवा में रहते हैं ये solid particles हैं, liquid droplets हैं, इनका मिक्सचर है जो एयर में सस्पेंडेड रहता है. और इस बात को बच्चों समझिएगा, कोई भी पार्टिकल यदि एयर में सस्पेंडेड है, एयर में पाया जाता है, एम्बिएंट एयर में, तो इसके 100% चांसेस हैं कि जब आप सांस लेंगे तो वो आपके सांस लेते समय आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकता है. और अगर वो टॉक्सिक है, अगर वो कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर कॉजिंग है, then it can cause a lot of problems within the human body, and a lot of carcinoma, a lot of cancer which is happening, cancer of the lungs or cancer of the parenchyma or of the diaphragm, or the tracheal cancer, esophageal cancer. Many of these are primarily because of some toxic and cancerous materials which are present in the air. So what is the size range? Particles between the range of 0.0002 microns to 500 microns, यानी कि इस रेंज में जितने पार्टिकल्स आते हैं ये सब पार्टिकुलेट मैटर के तहत आ जाते हैं. So these are all particles between the range of 0.0002 microns to 500 microns come under the range of particulate matter, and absolutely essential for us to understand. Okay, what is the lifetime of these particles? The lifetime of these particles, lifetime का मतलब ये particles कितनी देर तक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं, ये मतलब होता है लाइफ टाइम का. So from few seconds to several weeks, कुछ सेकेंड से लेकर के कई हफ्तों तक. कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कुछ ही सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कई हफ्तों तक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं, एयर में प्रेजेंट रह सकते हैं. What is their concentration?
from a few hundred to 100,000 per centimeter cube. So different particulate matter have different concentrations in which they can be found in the air. Now, what are some common examples? Dust, dirt, fog. आप जानते हैं fog क्या होता है? Fog, right? कोहरा. Soot. You know what is soot? आपने कभी अगर मोमबत्ती को जलते हुए देखा हो, अगर मोमबत्ती जल रही है और अगर उसके ऊपर आप चम्मच लगा दीजिए इस तरह से, राइट? सो ये कैंडल की फ्लेम है, इसके ऊपर आप एक इन्वर्टेड स्पून इस तरह से लगा दीजिए और कुछ समय के बाद हटाइए तो देखिएगा चम्मच की इनर वॉल पर एक काला काला पार्टिकल, एक लेयर जैसी जमा हो जाती है, उसको सूट कहा जाता है. इट्स ए हाईली कार्बोनेशियस, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो उसके ऊपर वहां जमा हो जाता है, दैट इज सूट. धुआं, स्मोक आर लार्ज एंड डार्क इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई. ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, डर्ट है, फॉग है, सूट है, स्मोक है, ये बड़े होते हैं, डार्क कलर्ड होते हैं, आंखों से दिखाई दे जाएंगे. बट देयर आर मेनी अदर पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल and they are so small that they can only be detected through an electron microscope, and we will be talking about that in a little bit. So these particles come in many sizes, they come in many shapes, they can be made up of hundreds of different kinds of chemicals, and some of the common sources of particulate matter are two types. कुछ sources जिनको हम लोग, कुछ particles जिनको हम primary particles कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम सेकेंडरी पार्टिकल्स कहते हैं. ओके, व्हाट आर प्राइमरी पार्टिकल्स? दे आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट से डस्ट है, बहुत सारा डर्ट है, धुआं निकल रहा है, धूल निकल रहा है, अनपेव्ड रोड है, कच्ची सड़कें हैं, उसके ऊपर जब गाड़ी चलाई जाती है कच्ची सड़कें हैं, फील्ड्स हैं, मैदान हैं, जब तेज हवा चलती है बहुत डस्ट जनरेट होता है, प्राइमरी पार्टिकल. स्मोक स्टैक है, बहुत सारा काला गहरा वाला जो धुआं होता है, there's a lot of soot in it. So these are all primary particles. Then there are some secondary particles. Okay, now other particles are formed in certain complicated reactions in the atmosphere of chemicals such as oxides of sulfur, oxides of nitrogen. They are emitted from power plants, industries and automobiles. So these oxides of nitrogen, oxides of sulfur, etc., they are all referred as secondary particles, and they make up most of the fine particle pollution in the country. Fine particles का मतलब जो oxides of sulfur हैं, oxides of nitrogen हैं, या इस तरह के जो secondary particles हैं, ये बहुत महीन होते हैं. डर्ट है, डस्ट है, धुआं है, पोलन है, ये सब साइज में बड़े होते हैं, आंखों से दिख जाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये. बट ये वाले जो सेकेंडरी पार्टिकल्स है, these are fine particles and they are very very dangerous in nature. So we have some mobile sources, vehicles, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, जो कि VOCs का मतलब होता है volatile organic compounds. volatile organic compounds ये रिलीज करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं धुओं में और पार्टिकुलेट मैटर होता है. देन वी हैव सम स्टेशनरी सोर्सेज, स्थायी हैं. अब जैसे ये इंडस्ट्री है और आप नोटिस कीजिए इसकी चिमनी से देखिए कितना धुआं निकल रहा है. Heavy smoke coming out of the chimney of this industry. Power plants हैं, factories हैं, manufacturing units हैं जिनमें बहुत heavy oxides of nitrogen, oxides of sulfur and particulate matter ये produce होता रहता है. These are all secondary particles. Then we have some natural sources. ये देखिए forest fires हैं, okay, जंगलों में आग लग जाती है, प्राकृतिक होता है ये. Volcanoes हैं, natural sources हैं, बहुत सारा धुआं, बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा फ्लाई ऐश, राख, ओके, ये प्रोड्यूस होती है. एंड दीज आर ऑल आल्सो कंसिडर्ड एज पार्टिकुलेट मैटर. एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम एरिया सोर्सेज. एरिया सोर्सेज का मतलब ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर के जो किसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है और उसी एरिया में, फॉर एग्जाम्पल गैस स्टेशन, जहां पर पेट्रोल स्टेशन होता है, जहां गाड़ियां जाती हैं पेट्रोल की रिफिलिंग के लिए, उस एरिया में बहुत सारा पेट्रोल का फ्यूम्स और धुएं के डीजल के फ्यूम्स रहते हैं जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये उसी एरिया में सिर्फ रहते हैं क्योंकि वहीं पर वो एक पेट्रोल टैंक है, लिहाजा वो
एरिया सोर्सेस कहलाते हैं. सो वी हैव मोबाइल सोर्सेस, स्टेशनरी सोर्सेस, वी हैव नेचुरल सोर्सेस, वी हैव area sources. These are all sources of various kinds of particulate matter. Okay, let's move forward. Now, so finely divided का मतलब होता है बहुत महीन. Finely divided solid and liquid particles that remain suspended in the air are called particulate pollutants. ये दो प्रकार के होते हैं. पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स या पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार के होते हैं. एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं PM10, बिग पार्टिकल्स. PM10 का मतलब इनका साइज होता है अप टू 10 माइक्रॉन्स. ओके. दूसरा है जिसको हम कहते हैं PM2.5. एक है PM10 लार्जर पार्टिकल्स 10 माइक्रॉन तक के. दूसरा है जिसको हम कहते हैं PM2.5. ये स्मॉल है, यानी कि they have size only up to 2.5 microns. यानी PM10 के मुकाबले PM2.5 का साइज जो है वो 1/4 है. 1/4 द साइज. ये पार्टिकल्स 10 माइक्रोन तक हो सकते हैं जिनको हम PM10 पार्टिकल्स कहते हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उन्हें PM2.5 कहा जाता है क्योंकि इनका साइज मैक्सिमम केवल 2.5 माइक्रॉन्स तक ही हो सकता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली और जो याद रखने वाली बच्चों को ये है कि द टाइप एंड केमिकल नेचर ऑफ ए मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन. किस प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर है, किस प्रकार का केमिकल नेचर है, वो टॉक्सिक है, वो हैजर्डस है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, कैंसर कॉजिंग है, what is the chemical nature of the particulate matter. ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, these are very very important aspects that need to be remembered and understood. Okay, now particulate matter to 10, ये 10 है ये, और ये 2.5 है. ये जो डायग्राम है अगर आप इसको नोटिस करिएगा, दिस is the diameter of human hair. ये इंसान का जो बाल होता है ना, one strand of human hair, ये उसका diameter है. Okay, about 60 micrometer. This is the diameter or the width of one strand of human hair. इसका ये इस ह्यूमन हेयर का ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है, क्रॉस सेक्शन. और आप इमेजिन कीजिए जो PM10 पार्टिकल है उसका ये साइज है और PM2.5 का ये साइज है. सो यू कैन इमेजिन कि PM10 पार्टिकल, PM2.5 पार्टिकल ये कितने महीन हैं. ज्यादातर तो आप आंखों से देख ही नहीं सकते. अब आप इमेजिन करिए ह्यूमन हेयर की थिकनेस कितनी होती है, उसके कंपैरिजन में देखिए यहां पर दिस इज PM10 particle and this is PM2.5. How small, how fine these particles are, and they are so dangerous because they have the ability to enter in the human system. This is another figure, the same thing. अब आप देखिए यहां पर ये क्या है, ये रेत की कण है. ये these are sand particles. रेत की कण है ये. ओके, जो समुद्र के किनारे या आप इधर गंगा तट पे चले जाइए, वहां पर गंगा नदी के किनारे जो बालू है, जो रेत है, उसका एक कण है. ये देखिए आप, ये उसका साइज है. ये ह्यूमन हेयर का स्ट्रैंड है, ये वन सिंगल स्ट्रैंड. अब आप ये देख लीजिए, ये जो एक पार्टिकल है, दिस इज PM10. आप इमेजिन करिए 1 2 3 4 5 PM10 पार्टिकल्स को अगर अगल बगल रखा जाए तब जाकर के वन स्ट्रैंड बनता है. और ये जो है, दिस इज PM2.5, 1/4, even 1/4 smaller than PM10. So these structures are just to help you understand कि कितना महीन ये पार्टिकल्स होते हैं. हमको पता ही नहीं चलते. हम जब सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं. और मैं कुछ एक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाऊंगा. से फॉर एग्जांपल, अब आप देखिएगा, ये ह्यूमन नोज है. ये ह्यूमन नोज एंड माउथ सिस्टम है. हमारी ओरल कैविटी, हमारी नेजल कैविटी ये है. ये ओके, ये वो हमारा जो थ्रोट एरिया है, ये लैरिंग्स है, ये थ्रोट एरिया, ये ट्रेकिया है. होता क्या है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इन जगहों पर आकर के रुक जाते हैं.
फंस जाते हैं, ओके, क्योंकि मूवमेंट की जगह कम होती है, नाक के अंदर पार्टिकल्स फंस जाते हैं, मुंह के अंदर ओरल कैविटी में पार्टिकल्स यहां फंस जाते हैं। सो जब हम बहुत कस के स्नीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स नाक में या यहाँ ओरल कैविटी में कहीं फंसे थे वो बाहर निकल आते हैं। जब हम बहुत कस के खांसते हैं तो ये जो पार्टिकल्स PM10 पार्टिकल्स यहाँ फंसे हुए थे ये बाहर निकल जाते हैं और हम उससे बच सकते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो PM2.5 पार्टिकल है जो इस PM10 का 1/4 है साइज में, सो स्मॉल, ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, थ्रोट, ट्रेकिया, इन सब को पार करते, क्योंकि बहुत महीन है, बहुत छोटा है, ये करते 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 आकर के हमारे लंग्स के अंदर। अब आप इमेजिन कीजिए ये जो एल्वियोलाई है, एयर सैक्स है, यहां तक ये पार्टिकल्स आकर के सिचुएट हो जाते हैं। दैट्स हाउ स्मॉल एंड हाउ डेंजरस दीज पार्टिकल्स, दे कैन गो रियली डीप इनसाइड द थिंग, ओके। Let me go faster now. So what are PM10 particles? Smoke particles, dust particles from factories, farming operations, road dust, etc. ये सब PM10 है। और उसके बाद बहुत सारा टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ हैवी मेटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि PM2.5 के रेंज में आते हैं, जो कि आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा हायर हो सकता है क्योंकि आप अभी स्कूल में हैं, बट इफ यू टेक अप केमिस्ट्री एट हायर लेवल्स देन यू विल बी गिवन अ मोर डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दिस, ओके। नाउ this is a picture just for you to understand, okay, as a city in the US called Los Angeles। और आप इमेजिन कीजिए ये तो लॉस एंजलिस शहर का दृश्य है, लेकिन ये इलाहाबाद शहर का भी दृश्य हो सकता है। कभी भी आप किसी शाम को निकलेंगे, अगर किसी क्राउडेड एरिया में जाएंगे, यू विल सी रोड्स कवर्ड विथ स्मॉग। व्हाट इज स्मॉग? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक है, SM stands for smoke, OG stands for fog, so smoke and fog mixed together is smog. Any city could be covered with smog, even the city of Allahabad। This is a very हम लोगों के लिए तो बहुत ही कॉमन साइट है। इलाहाबाद शहर के अंदर एक गाड़ी निकलती है, धुआं और धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। रोड डस्ट प्राइमरी कॉज फॉर अ लॉट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, ओके। ये फॉग है, और आपने ये भी दृश्य देखा हुआ है जब विंटर सीजन में बहुत कोहरा पड़ता है, इसी तरह से हम लोगों की रोड्स होती हैं। और आप जानते हैं कि हाईवेज के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि फॉग की प्रेजेंस में विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, एंड पीपल आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, सो दे हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली। मेनी टाइम्स अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स टेक प्लेस just because of poor visibility. Now, what is this? Please see here. This is the surface of a particulate matter as seen under an electron microscope. एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो फॉर एग्जांपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये किसी भी पार्टिकल को 1 लाख टाइम्स बड़ा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप जानते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि किसी भी फाइन पार्टिकल को हम उस लेंस के थ्रू देखते हैं, हमको बड़ा और साफ दिखाई देता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो थोड़ा और एडवांस टेक्निक है, और वो किसी भी पार्टिकल के सरफेस को वो 1 लाख से 3 लाख गुना साइज में बड़ा कर देती है। नाउ दिस इज द सरफेस ऑफ ए डस्ट पार्टिकल or a smoke particle or a smog particle or a pollen grain or any droplet of any particle, ये उसका सरफेस है ये। और आप इमेजिन कीजिए कितना रफ सरफेस है, और ये जो रिजेस है ना, ये जो खाली खाली जगहें हैं, इनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, इन रिजेस के अंदर वो पार्टिकल्स, वो डेंजरस सब्सटेंसेस जाके फंस जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ये पूरा पार्टिकुलेट मैटर उस डेंजरस सब्सटेंस के साथ हमारे सिस्टम के अंदर में प्रवेश कर जाता है, ओके। I'll just skip all of this and move forward because we are fighting time now। what are the major causes? इसका प्रभाव क्या है? पार्टिकुलेट मैटर का ह्यूमन सिस्टम के ऊपर प्रभाव क्या है? अब आप देखिए ये जो चित्र है, ये जो फिगर है, ये हमें ये बता रही है कि
कुछ पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर रोक दिए जाते हैं इन द नेजल प्लेस, कुछ पार्टिकल्स यहाँ रुक जाते हैं, और जो इन दो जगहों पर नहीं रुक पाते वो अंदर लंग्स के अंदर, एयर सैक्स में, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, एल्वियोलाइज के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, एंड इट कैन कॉज वेरी सीरियस डिजीजेस लाइक एस्थमा, इट कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, इट कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस, इट कैन कॉज even lung cancer. As so dangerous these particles are. Okay, what are the common diseases? Now, जो लोग एस्बेस्टस के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एस्बेस्टस के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एस्बेस्टस की शीट है, उसको किसी मशीन से काटा जा रहा है, तो जब मशीन से काटा जाता है तो एस्बेस्टस के बहुत फाइन पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं और एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। और जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो वो सारा एस्बेस्टस सांस के साथ, हवा के साथ हमारे सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है, एंड इट कैन कॉज ए डिजीज कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करने वालों को होता है। जो ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस हो जाता है, क्योंकि सिलिका के बहुत फाइन पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, ह्यूमन सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। जो कोल में, कोयले की खदान में काम करने वाले लोग हैं, कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं, उनको जो डिजीज होती है उसको ब्लैक लंग डिजीज कहा जाता है, वेरी डेंजरस। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको व्हाइट लंग डिजीज हो जाता है। अब आप देखिए, आप ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर एस्बेस्टस फाइबर्स, वेरी फाइन, वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन इफ द आई एंटर्स। अब ये सोचिए, आप इमेजिन करिए, ये एस्बेस्टस के पार्टिकल्स हैं, ये नीचे यहाँ पर ये सिलिका के पार्टिकल्स हैं, पाउडर्ड, बिल्कुल पाउडर्ड, वेरी फाइन। ये आप देखिए कोयले का पाउडर है ये जो आपको नीचे दिख रहा है, दीज आर टेक्सटाइल फाइबर्स, सो स्मॉल दे कैन एंटर इन द ह्यूमन बॉडी एंड cause asbestosis, silicosis, black lung disease, white lung disease, and so many other different kinds of diseases. Okay, so with this I will stop now, क्योंकि समय already मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, but I want to stop here, and I just want to say that this lecture was only sort of throwing information at you, just informing you about डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल करके आप पढ़ेंगे और अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, लेकिन इतना जरूर ये है कि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास भी एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड है। बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर एयर में सस्पेंडेड रहता है, और आपको और हमको अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को उससे अवेयर करने की और उससे उनको प्रोटेक्ट करने की। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल। Thank you, sir. Thank you so much for explaining this different types of pollutions in a very interesting way and in very, very easy language. I am very sure that students will know the harmful consequences of this pollution, and they will definitely think that how to reduce this pollution. Thank you so much, sir. Our second speaker is Dr. Sunita Sehgal from Department of Chemistry of S.S. Khanna Girls Degree College. First of all, let me give her brief introduction. Dr. Sumita Sehgal did her PhD DPhil from University of Allahabad. Her research interest is kinetics. She has completed 3 research projects, 1 under DST and 2 under CP scheme of college. She is having 10 publications in national and international journals. She has authored 1 book and edited 2 other books. She is actively involved in preparation of self-learning material also. She is having 12 chapters in books. She has delivered 2 invited talks and has presented 19 papers. She has organized 20 online and offline national and international activities. She has got honor given by United Group of Institutions for Academic Excellence on May 2012. She has received appreciation letter from UP government for outstanding contribution to the success of National Road Safety Month. She has also received appreciation certificate for outstanding contribution to the success of
All India Essay Writing Event 2018, organized by United Nations Information Center for India and Bhutan and Sri Ramchandra Mission. And she has also received many appreciation letters for academic excellence. Welcome, Dr. Sumita. Please deliver your talk. Thank you very much, ma'am. First, I would like to thank the coordinator of Star College Scheme DBT, Dr. Archana Jyoti, ma'am, for giving me an opportunity to present my presentation, and also to Dr. Archana Tiwari, ma'am, the principal of Tagore Public School, that we are really honored, ma'am, that you people have given us a chance to show something. I just want to tell you something very important about the preparation of 10th, 11th, and 12th for students who are studying in 10th, 11th, and 12th class. Because I think my entire presentation depend upon their stress. I think I have personally feel that these people are really in very much a stress because of the board exam. Even though because of the scenario of this COVID-19, lot of stress has been already been removed, but now the condition has returned to normal, and again I think they need some kind of assistant to how to prepare for their board, and what actually they are feeling the difficulty. And I have prepared my talk on that particular topic itself, and the topic of my talk is, I just want to share my slide, ma'am. Let me brief you about the topic. The brain science improving memory is my topic. Is that visible from your side? Ma'am, the slides are visible? Yes, please continue. Please, please. I'm just slide show kar do, ma'am. Now I think it is visible to you all. So my topic is basically, brain science for improving memory. And I found that these students often complain कि मैम पढ़ते हैं याद नहीं रहता, भूल जाते हैं. So what is the logic behind कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी मेमोरी, क्योंकि भाई ओल्ड एज पीपल भूल जाए तो समझ में आता है, बट यंग पीपल अगर ऐसे कहने लगे कि मैम पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, भूल जाते हैं, क्लास में क्या पढ़ा है, and all these things I usually used to listen from your side. So I thought I must make you aware of this particular topic. What is actually being science involved in memorizing the things. So before we could start, I think I must tell you something very interesting. First, I would like to tell you some interesting facts about brain. So before we continue, what might be the process we should think while memorizing the things, what might be the conditions which we have to use. But before that, I would like to tell you some very interesting facts about brain science. Now, as you know, it has been proved by the scientific research that brain remembers the thing from the womb itself. अभिमन्यु की आपने कहानी सुनी होगी, आप जानते हैं वो सब कुछ उसने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था. सो द सेम थिंग इट्स रियली ट्रू फॉर आवरसेल्फ. अभी भी वही चीजें हैं, तो हम सीखना तो वहीं से शुरू कर देते हैं, बट वो सीखना एक स्टार्टिंग प्रोसेस आप वहां से हो रहा है. ये सही है कि आप लोग कहेंगे मैम IQ लेवल जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है. ऑफ कोर्स इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, बट अगर आप अपने खाने पीने, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका IQ लेवल भी बढ़ सकता है और मेमोरी भी बढ़ सकती है, मेमोराइजिंग पावर भी बढ़ सकती है, अंडरस्टैंडिंग पावर भी इंप्रूव हो सकती है. इसी एस्पेक्ट्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे. Next important factor upon brain is your brain storage capacity is considered virtually unlimited. It is really unlimited. आप जितना ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसके लिए स्पेस हो जाएगी. कहते हैं अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी चीज ऐसी है जो बांटने से कम नहीं होती बढ़ती, तो आप फौरन कहेंगे ज्ञान, नॉलेज. तो आप नॉलेज क्या है? ब्रेन. जितना ज्यादा आप उस चीज को यूज करेंगे उतना ज्यादा आप
उस चीज के लिए आगे बढ़ जाएंगे, आपकी वर्चुअली कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ब्रेन की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड होती है, बट द थिंग इज दिस कि आप उसको कितना यूज कर रहे हैं और कितनी देर तक, या हर आदमी अपना अपना अलग उसका सिस्टम है कि इतना वो यूज कर रहा है। अब वो कितना यूज कर रहा है ये भी उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, इस बात पे भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेन इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अबाउट 260 माइल्स पर आवर। जो भी हमारे ब्रेन के पल्सेस होते हैं, न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स है, उसमें जो ब्रेन इंफॉर्मेशन मूव कर रही हैं उसकी जो स्पीड होती है वो 268 माइल्स पर आवर आती है। आप सोच सकते हैं कितनी तेज होती है। आपका ब्रेन 25 इयर्स तक फुली डेवलप नहीं होता है। बाद में डॉक्टर सुनीता, आपकी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। हमने आगे बढ़ानी नहीं है ना मैम, इसी पर Okay. मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके ओके। At the moment it finish, I will extend it. तो Right. दूसरी चीज है, your brain is fully not formed until age 25. 25 years तक आपकी ब्रेन पूरे तरह डेवलप नहीं होता. It needs lot of energy to be developed. And next very important factor is short time memory. Short time memory बहुत छोटी देर के लिए आपके उसमें रहती है ब्रेन में. That is only just for 20 or 30 seconds. एक बहुत important myth है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पढ़ना होता है, कंसंट्रेट करना होता है, तो हम लोग कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, एंड वी थॉट वी आर वेरी एक्टिव एंड वी विल रिमेम्बराइज और द वर्किंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. तो ये ठीक है कि हमारी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है कैफीन लेने से या कुछ, बट इसकी मेमोरी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता. मीन्स वट एवर योर मेमोरी इज and it will remain as such, but your alertness increases, and when your alertness increases you try to do things in a better way or in a nice way. So थोड़ा सा होता है, लेकिन मेमोरी पे इसका कोई फर्क नहीं होता. That is a very big myth which is we generally follow. Next important and very important one is this कि हमारा जो ब्रेन है वो अगर बॉडी वेट से हम कंपेयर करें तो इट वाज जस्ट 3% ऑफ आवर बॉडी वेट, लेकिन जो ये ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई आपकी 30%, जितनी भी 30% आपकी पूरी इंटायर बॉडी का 30% ब्रेन को सप्लाई हो रहा है. ब्रेन इज द सुपीरियर क्वालिटी. उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि वो हेड है और वो सारी चीजों को गवर्न करता है, और जब वो मैसेज पास ऑन करता है तभी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है. मींस हेड इज सुप्रीमो, और उसको सब काम को कराने के लिए उसको बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो की जरूरत होती है. भले ही उसका साइज बहुत छोटा है, बट 30% ऑफ द इंटायर ब्लड सप्लाई वाज पम्प्ड to your brain. So this is an interesting fact. Another few important points are also there which I will like to tell you. Next is most of our neurons have been with us since birth and age does not toll. Your brain still makes neurons. ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अरे अब तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो. नहीं, it was not like that. हम हमेशा न्यू न्यूरॉन्स जनरेट करते रहते हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या कनेक्टिविटी आपकी जितनी ज्यादा होती है, आपकी मेमोराइजिंग पावर, आपकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होती है. तो थ्रू आउट द लाइफ वी दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. ठीक है. और एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी पावर है हमारे पास जिसकी वजह से हम ह्यूमन कहने के लायक है. दैट इज आवर ब्रेन कैन रीवायर इटसेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीवायर इटसेल्फ? इस चीज को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आदमी ब्लाइंड पैदा हुआ है, तो ब्लाइंड पैदा हुआ है तो उसका जो ब्रेन में पार्ट होगा जो आईसाइट को डील कर रहा होगा, वो अपने आप स्विच ऑन हो जाता है हेयरिंग पावर पर, क्योंकि अब उसके सेंसेस में क्या है, जो ब्लाइंड है वो देख नहीं सकता, लेकिन वो उसका पूरा का पूरा इंटेंशन किसमें होता है, हेयरिंग पावर में. तो वो आईसाइट वाला सेक्शन भी हेयरिंग पावर वाले सेक्शन से कंबाइन होके काम करने लगता है. दिस इज सेड टू रीवायर इटसेल्फ. ब्रेन में बहुत अच्छी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक क्वालिटी होती है जो आपको ये बताती है कि हम बहुत एडजस्टेबल मोड में हैं. अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, दूसरा आदमी दूसरा काम करेगा एंड वी विल कोऑर्डिनेट विद दैट. So this kind of thing happens with our brain also. Our brain can rewire itself. अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं. अब इस रीवायर प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं. रीवायर प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं. आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही करते हैं, बिकॉज your brain direct you to do the thing.
and if you start giving the direction to your brain कि no you have to do this, then brain start doing that thing. तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से यूज करना है और अपने आप को समझाना है कि नहीं यू कैन डू दैट, एंड डेफिनेटली और ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो उसको रीवायर करता है और वो काम अपने आप होने लगता है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योरसेल्फ एक्टिव. जो काम आप नहीं कर सकते हैं आप अपने आप को बार बार बताइए आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं. And if you keep on doing like this, your brain started rewiring the thing, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं हमें इस काम को करना आना है और हम करेंगे. So this is how what the things start doing the thing. Now next is very important, brain activity. जैसे आपके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं उसी तरह ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन की चीजें भी बहुत यूनिक होती हैं, एक के दूसरे से कभी मैच नहीं करती. हमारा ब्रेन बहुत छोटा होता है, एंसेस्टर्स के पास बहुत ब्रेन था लेकिन वो सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी. मींस द पावर लाइज इन स्मॉल, नॉट इन द बिगर वन. योर ब्रेन इज मेनली फैट. फैट इन द सेंस कि जो सेल है काम करने के लिए बहुत सारे फैट यूटिलाइजेशन होता है. जितना ज्यादा हम फैट खाते हैं अगर ब्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा फैट, क्योंकि काम उसको बहुत ज्यादा करना है तो उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए. तो जो फैटी कंटेंट होता है बेसिकली ब्रेन सेल को बहुत एम्फसाइज करता है. तो आपसे ये कहा जाए कि आप बहुत फैटी चीजें खाते हैं तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, लेकिन आप अगर पूरी तरह उस फैट को हटा देंगे अपने डाइट से तो सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट करेगा वो होगा ब्रेन. नेक्स्ट इज यूज इट और लूज इट. अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगी. द फंडा इज दिस. तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है तो कंटिन्यूअस आपको यूज करते रहना है. अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप बहुत दिन तक यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, चलना बंद हो जाता है. कार जो है आप अपनी गैरेज में छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी. क्यों? बिकॉज यू आर स्टॉप यूजिंग इट. आपने उसको यूज करना छोड़ दिया तो उसने आप उसको लूज कर गए. इन द सेम वे happens with the brain also. अगर आप उसका इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो आपकी कैपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगी. It's mean you have to be alert all the time. And am I audible to you all or not? Any of you can? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay, fine. If there is any problem, just tell me. Okay, now we are talking about use it or use it. तो हमें क्या करना है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है. दैट इज, लेकिन ब्रेन का इस्तेमाल अनवांटेड चीजों में नहीं करना है. कहाँ करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्लीप डिप्रीवेशन किल्स ब्रेन सेल. अगर आपने सोना छोड़ दिया तो आपकी ब्रेन सेल डेड होने लगती है. अब ऐसा क्या होता है भाई कि हम सोएंगे नहीं तो ब्रेन सेल डेड हो जाएगी. आप जब सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन रेस्ट नहीं कर रहा होता है. वो पूरी टाइम जो आपने काम किया उस मेमोरी में से वो छांटता है कि क्या चीज हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखनी है, कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखनी है, और वो उसको कलेक्ट करके काम करता है, इधर उधर रखता है. जैसे कि आप जब कभी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, लौट के आते हैं, अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं और मम्मा क्या करती है जब आप सो जाते हैं तो उसको रीअरेंज करके अपनी जगह पे रख देती है. इन द सेम वे हैपेंस विद द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज अ सुपीरियर पार्ट. वो दिन भर आपने क्या काम किया और वो कहाँ पे कौन सी मेमोरी को उसको रखना है, दैट वर्क हैज टू बी डन बाय द ब्रेन व्हाइल यू आर स्लीपिंग. अगर आपने सोया नहीं तो आपने क्या किया, ब्रेन को वो मौका ही नहीं दिया और वो जो भी आपने काम किया वो आपकी मेमोरी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएंगी, बिकॉज इट हैज नॉट बीन यूज्ड एंड पुट ऑन द प्रॉपर प्लेस. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिप्रेशन इम्पैक्ट आवर एबिलिटी टू रिमेम्बर. हमें डिप्रेशन में नहीं रहना. डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी खराब हो जाती है. आप जब घबरा जाते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता. व्हाई? द सेम थिंग हैपेंस कि आपका मेंटल स्टेट प्रॉपर नहीं है. अगर हम आपको धक्का देंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आप को बचाने में, सीधे खड़े होने में लगेगा, ना कि आप ये सोचेंगे कि फला काम हमने किया था तो कब किया था. दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. तो व्हाट हैपेंस कि हमें क्या करना है, हमें अपने डिप्रेशन, अपनी मेंटल स्टेट को डिप्रेशन से बहुत दूर रखना है ताकि हम प्रॉपरली उस काम को कर सके जो हमें करना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव बेटर मेमोरीज। अब लेफ्ट हैंडेड पीपल होता क्या है, अगर अक्सर आप देखिए जो उल्टे हाथ से लिखते हैं उनकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? बिकॉज उनका राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों साथ में वर्क करता है, बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, जबकि राइट हैंडेड वालों का एक साइड वर्क करता है, दूसरा साइड वर्क नहीं करता है। तो लेफ्ट हैंडेड पर्सन यूजुअली वी फाइंड कि दे हैव अ बेटर मेमोरीज, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को याद रख पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दें, बिकॉज द टाइम हैज लॉस्ट नाउ। लेकिन जो लोग दोनों हाथों से लिखते हैं उनकी मेमोरी या वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन बहुत ज्यादा होती है। दैट इज बीन प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। A quick nap can help you retain information। जैसा हमने आपको बताया कि जब आप सोते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो अच्छे जगह से पहुंच जाती हैं और आप उसको रिट्रीव करना चाहेंगे वो तो आसानी से आपको याद आ जाएंगे। तो कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, जब आप बहुत थक जाए, मेंटल एग्जॉस्ट हो जाए, तो चुपचाप जाकर एक कोने में थोड़ी देर सो लेना चाहिए। सो लेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा एंड यू विल एबल टू डू योर वर्क इन अ प्रॉपर वे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और द इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट ब्रेन। बट अब हम बात करेंगे कि काम क्या करना है, हमारा मतलब पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है। हमें इतनी कहानी इसलिए बतानी है ताकि आप अपने आप को क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी वो चीज है जो इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एक्वायर, स्टोर, रिटेन एंड लेटर रिट्रीव। हमें वो चीजें हैं जो हमने सुनी, हमने उसको अपने पास रखा और हम दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, दैट इज मेमोरी। और मेमोराइजिंग पावर वही है, वो आपकी पावर है जो कितना आप उसको वापस रिट्रीव कर पाते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर्स में काम करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इन द सेम वे आवर ब्रेन वर्क्स। पहले क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोड यानी इनपुट, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है अपने हिसाब से कोडिंग वोडिंग करता है, फिर उसको एक जगह जाके रख देता है, यानी कि प्रोसेस करता है, स्टोरेज करता है, और रिट्रीव आउटपुट, हमें जो चीज दोबारा मिली, वो जो हमने सुनी थी वो हम दोबारा आपको बता दें, दैट इज रिट्रीवल। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन एंड द कंप्यूटर इज एंटायरली सेम, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इन द सेम वे मेमोरी इज इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, हम दोबारा उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं। The same thing I have written in this particular how the memory works. First, it gather information from the senses. Then, वो जो सेंसेस से उसने एब्जॉर्ब किया, अगर उसके काम की है तो वो स्टोर कर लेगा, नहीं तो उसको बाहर फेंक देगा। रिट्रीव, और अगर उसको ये लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और नियर फ्यूचर में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में पुट कर देता है। नाउ दिस इज द अनदर साइड। यहाँ क्या है, इफेक्टिव स्टडिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग लर्निंग फ्रॉम शॉर्ट टाइम टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमें करना क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, 20 to 30 सेकेंड्स, और हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट, हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए। तो दिस इज अ डायग्राम। हमें ये करना है कि पहले सेंसरी इनपुट हुआ, सेंसस से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, वो या तो हम भूल जाएंगे या सेंसरी रजिस्टर्ड होके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद फिर से हो सकता है हम भूल जाए, और या हो सकता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, ब्रेन को ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिस्टोर कर देगा और रिवर्सल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द वर्क्स। नाउ अब बात ये उठती है कि हम कैसे उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करें। तो पहले हम उसके पीछे का फंडा समझेंगे कि होता क्या है बेसिकली। देखिए 10% वो होता है, 10% हम एब्जॉर्ब करते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं, 20% इंफॉर्मेशन हमारी रिट्रीव हो जाती है जब हम हेयर करते हैं, सुनते हैं, 30% जब हम उसको देखते हैं। तो अगर हमें देखकर कोई चीज समझ में आती है तो बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि 30% हम तुरंत ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हमने देखा और सुना, दोनों काम किया, तो 50% हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है हमारे ब्रेन में। अगर हमने उसको डिस्कस किया तो 70% चली जाती है, और अगर हमने उससे दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो 90% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कैप्चर हो जाती है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं, बार बार उसी चीज को पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दे आर द सुपर ह्यूमंस, दे आर नॉट सुपर ह्यूमन, बिकॉज दे आर टीचिंग एवरी टाइम, और पढ़ाते पढ़ाते उनके खुद के डाउट्स भी क्लियर होते चले जाते हैं, और 95% इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाती है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बट आप पढ़ाना मत शुरू करिए, लेकिन आप
चीजों को डिस्कस करना भी शुरू कर दीजिए अपने पेयर स्टूडेंट्स के साथ, तो भी आप 70% आप उस चीज को रिगेन कर लेंगे। तो 70% इज एट अ टाइम, अगर 70% इंफॉर्मेशन आपको रिट्रेन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड रिजल्ट। तो आप चीजों को डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर ठीक है हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कोई भी चीज को नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और आसानी से करना है, तो हमें किन किन चीजों का याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें। पहला चीज है आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। घूमने फिरने, खाना, रेस्टोरेंट जाने एंड एवरीथिंग आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है आसानी से आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है, आपको कोई चीज, उसमें आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एंड वंस यू आर इंटरेस्टेड, वो चीजें अपने आप आपको बिना एफर्ट के ही आपके अंदर माइंड में चली जाएगी एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपने कोर्स से या अपने आप चाहते हैं उस चीज को आप मेमोराइज, किसी भी पर्टिकुलर चीज को आप चाहते हैं कि मेमोराइज कर लें, तो उसमें आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए। इंटेंट टू रिमेम्बर, और ये अपने ब्रेन को बताइए इंटेंट की मुझे इसको याद रखना है। आपको ब्रेन को बताना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर आप बताएंगे तो ब्रेन को पता चल जाएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उसको मुझे संभाल के रखनी है। तो आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए, नहीं नहीं मुझे इसको रिमेम्बर ही करना है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले तो आप इंटरेस्ट क्रिएट करिए और अपने ब्रेन को बताइए कि यस मुझे इसको रिमेम्बर रखना है। नाउ व्हाट इज द बेसिक बैकग्राउंड। अगर आप उस चीज, किसी भी जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं और आपकी उसकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज जल्दी समझ में आएगी। तो अगर कोई टफ टॉपिक है तो उसके पीछे की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। एंड नेक्स्ट काम है सिलेक्टिविटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको फिल्मी मैगजीन्स नहीं पढ़नी है, आपको कोर्स की बुक पढ़नी है। तो सिलेक्टिविटी आपकी है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप सिलेक्टिविटी, जो आपका इंटरेस्ट होगा वही आपकी सिलेक्टिविटी भी हो जाएगी। तो स्टडी में भी आपको कौन सी टॉपिक आपको लग रहा है टफ है, तो आप उसको सिलेक्ट करके पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू रिमेम्बर दैट। नेक्स्ट है रेसिटेशन। आप किसी भी चीज को अगर जोर से बोल के पढ़ते हैं तो जल्दी लर्न हो जाती है। So this is a form of a technique which we use. Now, what is the component of better learning? अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें, तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला होता है विजुअलाइजेशन। हम उसको दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। कोई भी चीज हो रही है, अगर आपने कोई इंग्लिश की स्टोरी पढ़नी है, तो आप लोग क्या करते हैं, रात में उठते हैं, उसका वीडियो बना के रखा हुआ है नेट पे, and you just go and see that entire story in a video form and you memorize it. अब 2 मिनट का काम होगा, फटाफट कर लिया। लेकिन क्योंकि रीडिंग में तो 10% जा रहा है और आप विजुअलाइजेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो 50% चला गया। तो विजुअलाइजेशन अगर आपका हो रहा है, उन चीजों को आप, जरूरी नहीं है नेट पे देखें, अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं अपने अंदर, तो वो चीजें बेटर लर्निंग होती है, आसानी से लर्न हो जाती है। दूसरा है एसोसिएशन। आप चीजों को एसोसिएट करना सीखिए। आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज में आप कैसे क्या करें कि आप इंटरलिंक करें चीजों को कि आपको आसानी से लर्न हो जाए। एक वेरी सिंपल एग्जांपल है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है। पीपल गेट कंफ्यूज, भाई हम कैसे लर्न करें, कौन से वाले का कौन सा नाम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। नहीं, इट इज वेरी इजी। अगर आप सपोज अ सिंपल एग्जांपल, बीपीएल एक बहुत बड़ी कंपनी थी समवेयर, अब तो नहीं है, या है भी तो आई डोंट नो। तो आपने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड का बी लिया, लॉरी का एल लिया, और उसके बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, बीपीएल। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इज द प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस थ्योरी। तो आपने क्या किया, उस चीज को एसोसिएट कर लिया अपने आप से, उसने प्रीवियस नॉलेज को इससे एसोसिएट करके कुछ बना लिया, एंड देन यू एसोसिएट। अब आपसे कोई सोते जागते कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरीज का कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन जो देता है वो एसिड, जो लेता है वो बेस, काम खत्म। ठीक है, तो आपने क्या किया, चीजों को एसोसिएट किया। अब उसी तरह केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, तो बहुत सारी चीजें हम मिनोमोनिक्स बना लेते हैं, राइम करके लर्न कर लेते हैं, एंड यू विल रिप्रोड्यूस इट। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से आगे की नॉलेज को इंटरलिंक करके आप उसको लर्न कर रहे हैं। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ
strengthening your memory. Now distributed practices, आपने क्या किया, आप क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे 10-10 घंटा लगातार पढ़ते रहते हैं, और बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपका दिमाग थक जाता है और अब वो कुछ भी याद करने की स्थिति में नहीं है, बट स्टिल व्हाट आर यू डूइंग, अरे कल एग्जाम है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ रहे हैं बट पढ़ रहे हैं तो लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। तो आपको करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिसेस, आपको प्रैक्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको 10 आवर्स पढ़ना है तो आप 1 आवर पढ़िए, 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, देन यू starting 1 hour, then you again take 10 minutes or 15 minutes break and then you start doing the thing. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट, आप हमने कहा, आप लोग कहते हैं जेनेटिक फैक्टर होता है, भाई उसके मम्मी पापा इंटेलिजेंट है इसलिए वो भी इंटेलिजेंट है। नो, दिस इज नॉट द थिंग एट ऑल। आप हर चीज का सोल्यूशन दुनिया में है, ढूंढने वाला चाहिए। तो आप ये भी देखिए, मेमोरी डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करती है। लाइफस्टाइल पे क्यों डिपेंड कर रही है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन का खाना क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन अगर हम उसको ज्यादा देंगे तो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। तो जो लोग स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनके ब्रेन, आप दौड़िए तो क्या करेंगे, आप सांस तेजी से लेते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है और हम ऑक्सीजन से बर्न करके एनर्जी निकाल रहे होते हैं। और जब हम सांस ज्यादा तेजी से लेते हैं तो ऑक्सीजन का आउट इनपुट काफी ज्यादा हो जाता है और वो ऑक्सीजन ब्रेन में जाती है, एंड दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जितनी ज्यादा ब्रेन में जितनी ज्यादा होगी, ब्रेन उतना अच्छा डेवलप करेगा। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, ऑब्जर्व गुड न्यूट्रिशन, आपके पास खाना बहुत अच्छे से होना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह खा लीजिए और फिर रात में जाकर खाइए, बीच का टाइम गायब हो गया तो क्या हुआ, यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल डिप हो गया। जब ग्लूकोज लेवल डिप हो गया तो ऑब्वियसली माइंड को खाना नहीं मिला तो बेचारा भूखे पेट ना होए भजन को पाला, तो अब उसका दिमाग चलना भी बंद हो गया। तो ऐसा करिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ लेते रहिए। स्टे इंटेलेक्चुअली एक्टिव थ्रू लर्निंग, अपने आप को अलर्ट रखिए और अपने दिमाग को जो भी सामने वाला बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए, और आपको लगता है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करिए। टाइम, स्लीप टाइम बहुत रेगुलर होना चाहिए जैसा हमने बताया, क्योंकि ब्रेन बेचारा तभी काम करता है जब आप सोते हैं, तब वैसे तो करता ही है लेकिन वो जब आप सोते हैं तब उसके पास और एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक रेगुलर स्लीप होना बहुत 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 जरूरी है। और डिप्रेशन ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन या इमोशन अगर होगा तो ब्रेन कह देता है ना बाबा मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो अपने आप को चिल रखिए, खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। काम का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो आपको अच्छा होना चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेन की एफिशिएंसी को वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ ओके। नाउ इज देयर एनी रोल्स ऑफ म्यूजिक इन इम्प्रूविंग मेमोरी? क्या ऐसा हो सकता है कि मेमोरी म्यूजिक सुनने में हमारी मेमोरी इंप्रूव हुए? म्यूजिक इज इट्स अ गॉड गिफ्ट। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज का सोल्यूशन म्यूजिक के पास होता है। आप लोग क्या होता है कि आप लोग आजकल की जनरेशन को फास्ट म्यूजिक पसंद है, लेकिन ब्रेन बेचारा उसको क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, उसको सूदिंग इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने लग जाइए, लेकिन आजकल बहुत सारे नेट पर स्टडी म्यूजिक्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है कि जब आपको ज्यादा देर अपनी एनर्जी को, ब्रेन को वर्किंग ऑर्डर में रखना है तो आप या तो क्लासिकल म्यूजिक ले सकते हैं या आप रिकॉर्डेड नेचर की जो साउंड होती है उसको आप पीछे बैकग्राउंड में बजा सकते हैं जिसमें कोई वर्ड्स ना हो, सिर्फ म्यूजिक। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स। ठीक है, तो जिसके वर्ड्स नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, सूदिंग म्यूजिक है जो ब्रेन को रिलैक्स करे, इस तरह म्यूजिक के साथ अगर आप पढ़ाई, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट? Yes, ma'am, you are audible. हाँ Yes, ओके। yes, हम बीच बीच में absolutely. पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सो गए हो हमारे सुनते सुनते, तो हमने कहा पूछ लेते हैं, नींद से थोड़ा सा जगा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो आपको नेचर की साउंड
पीछे आप बैकग्राउंड म्यूजिक पे लगा के आराम से आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और बोल सकते हैं अच्छे बच्चों की तरह काम करते रहना, तो वो करता रहेगा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उसकी भी लिमिट है। आप 1 घंटा अगर अच्छे ऑर्डर में है तो म्यूजिक सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे तो 2 घंटे तक काम करने लायक स्थिति में रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक या एक शॉर्ट नैप ले लेनी चाहिए ताकि आप उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। आप लोग ने बायो के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस जो है बहुत तेज धूप में इतनी अच्छी नहीं होती, जितनी धूप हो फिर छाए हो फिर धूप हो फिर छाए हो तो बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो इन द सेम वे हेयर ऑल्सो ब्रेन को भी क्या, थोड़ा सा काम करिए फिर रिलैक्स करिए फिर काम करिए फिर रिलैक्स करिए, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसका बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा एज कंपेयर टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये ब्रेन के साथ बहुत अच्छी चीज है कि म्यूजिक के साथ इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो स्टार्ट यूजिंग दीज टिप्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग। म्यूजिक का एक ऐसा क्या हो जाता है ब्रेन में कि वो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो बेसिकली होता क्या है, लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ काम करने लगते हैं। म्यूजिक एक्टिवेट बोथ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। उस म्यूजिक को बेचारे को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट को एक्टिवेट करना है कि राइट को एक्टिवेट करना है, वो दोनों को एक्टिवेट कर देता है। और जब दोनों ब्रेन अच्छे से वर्क करने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपकी maximize energy, learning, improving memory, everything was tremendous, बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है। तो म्यूजिक मूव्स द ब्रेन टू पे अटेंशन, वो ब्रेन को अच्छे से पुश अप करता है, नहीं, यू हैव टू बी अटेंटिव। सो दीज आर द फ्यू क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक व्हिच रियली एनहांसेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ब्रेन। अच्छा चलिए ये बात हो गई। और दूसरा आप मेमोरी को सकते हैं वो मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि केवल मेमोरी को ही इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। मेमोरी के साथ साथ वो बहुत सारी चीजों को भी मेंटेन करता है, जैसे कि एंटी एजिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, मी सेंटर को खत्म कर देता है। मी सेंटर मतलब ईगो खत्म हो जाती है, हम बहुत एक्सेप्टेबल मोड में आ जाते हैं। जब हम एक्सेप्टेबल मोड में आ जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा क्योर एंड उससे बहुत दूर हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में कम हो जाता है। स्ट्रेस कम हो जाता है तो अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स आवर मेमोरी, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक मी सेंटर को खत्म कर सकता है। एंटी डिप्रेसेंट की काम करता है, मतलब डिप्रेशन खत्म हो जाता है अगर हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारी सोल क्या हो गई, शांत हो गई। तो शांति मीन्स एवरीथिंग इज पीस एंड काम। तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन अटेंशन बहुत बढ़ जाता है। और मेडिटेशन से बहुत बड़ा फायदा जो उन लोगों को होता है जो किसी चीज के एडिक्ट है, एडिक्ट स्मोकिंग के भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग के भी हो सकते हैं। तो हम स्टूडेंट में तो ये चीजें नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये एक बहुत अच्छी, अगर अपने आपको इंटायर बॉडी को कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन इज द ओनली मेथड टू डू दैट। रेगुलर ऐसा क्या होता है मेडिटेशन करने में, तो रेगुलर मेडिटेशन इंक्रीजेस ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन। मेडिटेशन आप करते हैं तो ब्लड फ्लो ब्रेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, which leads to a stronger network of blood vessels। blood vessels जो cerebral cortex जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो मेमोरी को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें बहुत अच्छी सी ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस। तो मेडिटेशन, म्यूजिक, इट्स अ वेरी एसेंशियल पॉइंट अगर आपने आपको शांत रखना है और अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है। क्योंकि आप क्या है, यू आर 10th 11th 12th स्टूडेंट और अभी आपको फेस करना है लाइफ को, बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है ताकि आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। नेक्स्ट इज एक्यूप्रेशर पॉइंट। हम वैसे तो जब आप बहुत थक जाएं और सब कुछ काम करना बंद कर दे तो आप इन पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है, आप उसको दबा के थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ जाएंगे तो भी आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। जहां पर हम बिंदी लगाते हैं वो पॉइंट थर्ड आई पॉइंट कहलाता है। इसको आप प्रेस करेंगे 2-3 मिनट, फिर इसको छोड़ दीजिए एंड यू विल फील रिलैक्स। सिमिलरली साइड में हमारे पॉइंट होता है, इसको भी 2-4 बार 2-3 मिनट के लिए इसको प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए एंड डेफिनेटली यू फील रिलैक्स। और एक
पैरों में पॉइंट होता है, इन दो जो बड़ी उंगली और छोटी उंगली के बीच में से थोड़ा सा ऊंचे, इन पॉइंट्स को आप प्रेस करेंगे। इन पॉइंट्स को जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी मेमोरी डेफिनेटली बढ़ती है, एंड आई हैव ट्राइड इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप इसको यूज करके भी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है पॉजिटिव थिंकिंग। की टू सक्सेस इज पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, संकल्प से सिद्धि, जो आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इफ यू कैन इंप्रूव योर मेमोरी लाइफ बाय यूजिंग पॉजिटिव थिंकिंग, आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। सोचेंगे अच्छा, काम भी अच्छा होगा। There is a small poem. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. अगर आप चाहते हैं, आप पहले से ही सोच लेते हैं हम तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं सोच, अब ये सोच आपकी हो गई नेगेटिव, तो आप कुछ नहीं कर सकते। If you like to win, but think you can't. आपको अच्छा लगता है जीतना, लेकिन आप कहते हैं नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, तो it will almost certain that you won't. तो आपको क्या करना है? Life battles don't go away to a stronger woman men. ऐसा नहीं है जो जीतते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग हो ना हो लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। Sooner or later, those who win are those who think they can. जीत उन्हीं की होती है जो ये सोचते हैं नहीं मैं कर सकता हूँ। आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप करना अपने आप शुरू कर देंगे। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आई थिंक एलिफेंट। एम आई राइट? लगता है सब सो रहे हैं, सबको जगाना पड़ेगा। हेलो, कोई है कि सब सो गए? हेलो, नो वन रिप्लाइज। ठीक है, जब आप लोग रिप्लाई Yes, ma'am, we are listening. We are listening and enjoying very much as well. ओके, अगर आप इंजॉय करेंगे तो हम भी आपको बहुत अच्छी सी बात बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो आप कहेंगे एलिफेंट। सबसे चालाक जानवर कौन सा है, तो आप कहेंगे लोमड़ी। ठीक है, और अगर मैं पूछूं सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो आप कहेंगे लेपर्ड ऑफ कोर्स। लेकिन इन तीनों में से कोई भी, त्रासदी क्या है, इन तीनों में से कोई भी जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा कौन है? लॉयन। लॉयन इज अ किंग ऑफ ए जंगल। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर इसमें तो ये तीनों में से कोई भी क्वालिटी नहीं है, तो फिर जंगल का राजा कैसे हो गया वो? क्योंकि उसका एप्टीट्यूड ऐसा है, वो ऐसा सोचता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा है। थिंक, अंडरस्टैंड? तो सेम थिंग हैपेंस विद यू। अगर आप कहते हैं नो आई एम अ विनर, इट्स मीन यू आर अ विनर एंड यू कैन बी अ विनर। तो अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल लेंगे, आप दुनिया को बदल लेंगे। दुनिया को बदले ना बदले, अपने लिए जिंदगी अच्छे से जी लेंगे। सो दिस इज माय फंडा ऑफ लिविंग। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड अगर आज से आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी, आई हैव अ एक्सीलेंट ब्रेन, तो ऑफ कोर्स यू विल वर्क इट इन द सेम डायरेक्शन एंड you will enjoy life as well. Okay, so this is all from my side, and I think I have provided you some tips to get success in your life. If you have any query related to my lecture, you are always welcome, and I'm here to solve your query. Any query from your side, beta? या तो बहुत अच्छा लेक्चर था, सबने सबको सब कुछ समझ में आ गया, या तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। अब आप बता दो आप लोग को क्या आया। हेलो, एनीवन वुड लाइक टू आस्क समथिंग? कुछ लोग अभी जाग रहे थे, उन्हीं जागे हुए व्यक्तियों से पूछ रही हूँ। अच्छा, यही बता दीजिए लेक्चर कैसा था। Only this much you can say. If you don't have any query, you may even ask that. You can tell me. Is there anyone in? Hello. Anyone like to say something? Hello. Now you are able to unmute yourself.
Participants, now you are able to unmute yourself. If anybody has to ask anything, you can ask. मेरा ये खत्म हो गया है ना, देखिए हाँ इसीलिए ऐसे आ रहा है। मैम आपने हमको म्यूट ही नहीं किए। मैम काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सुमिता मैम, Yeah. Okay. Thank you, बच्चों. I hope we will meet next time as well. Lots of good wishes to you all. Over to you, ma'am. Okay, thank you, Dr. Sumita. Thank you for explaining this brain science in a very, very easy way, very interesting manner. And I am very sure that all these students will be very, very benefited by your lecture, and they will use the techniques which you have told in this lecture to improve their memory. Thank you, Dr. Sumita. And now I request Dr. Ranjana to deliver formal vote of thanks. thank you ma'am. Very good afternoon all. As all good things come to an end in life, so is the program. On the behalf of whole fraternity of SS Khanna Girls Degree College and Department of Chemistry, I, Dr. Ranjana, take this opportunity to propose vote of thanks to this science awareness program. At the outset, I thank Professor R.K. Tandon, Manager, Tagore Public School. We are really enlightened with your presence, sir. Now, I would like to thank Principal of Tagore Public School, Mrs. Archana Tiwari, for her enthusiastic support. Now, I would like to express my profound gratitude to our principal, Professor Lalima Singh, for her support and cooperation. Now, I would like to thank our distinguished speakers, Dr. Justin Massey, Associate Professor from Ewing Christian College, Department of Chemistry, for his very interesting and thought-provoking address about the particulate matter and its consequences. I would like to thank our second speaker, Dr. Sumita Sehgal, for making excellent presentation on brain science for improving memory and making this program interesting as well as meaningful. Now, I'd like to thank our beloved head of the department and convener, coordinator, Dr. Archana Jyoti ma'am, who is the backbone of this event, for her moral support and guidance. Okay, participants, if possible, kindly switch on your videos. I would like to have your photographs in my memory. Please, if you are here, I would like to okay, fine. I'm showing few more. Okay, good. Thank you all for joining us. Okay, beta. Thank you. We are leaving. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.